Hello everyone and welcome back to my channel. In this video, we are going to start with another chapter, that is consumer equilibrium of microeconomics class 11th. So let's start with the topic. Just let me use this pen. Yeah, right. Consumer equilibrium. Consumer equilibrium, what does it mean? उससे पहले जरूरी है we should know what is the meaning of word consumer. Who is consumer? Consumer is one who buys goods and services for satisfaction of wants. तो consumer क्यों goods और services खरीदता है? Why? The purpose is satisfaction of wants. This is important, right? So there are two approaches to study consumer behavior and consumer equilibrium. As you can see, the first one is cardinal utility approach. It is also called as marginal utility analysis or Marshall utility analysis, right? Why it is known as Marshall utility? Because it is proposed by Marshall, Professor Marshall. Second is ordinal utility approach. It is called as indifference curve analysis or Hicksian analysis, right? Now you can see here cardinal utility and ordinal. These are the two types of utility. And अभी हम first approach पढ़ेंगे. The first one is cardinal utility approach. Cardinal utility approach में जो utility है, it is measured in terms of numbers like 1, 2, 3. तो here it is assumed कि हम utility को जो है measure कर सकते हैं in terms of number, right? So according to Professor Alfred Marshall, utility is measured in terms of numbers, that is numerical values. और unit क्या है? Measuring the utility, it is utils. जैसे अगर आप जो लिक्विड है, लिक्विड को कैसे मेजर, लिक्विड को मेजरिंग यूनिट क्या होता है? लीटर्स, राइट? और इसी तरह हमारा जो यूटिलिटी है, इसको हम, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऐसे लिख देती हूँ मैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो यूटिलिटी का यूनिट क्या है? यूटिल्स, राइट? So when the utility is expressed in utils, it is called as cardinal utility. Now utility का मतलब क्या है? Utility का मतलब है want satisfying power of a commodity. तो जो satisfaction आपको एक commodity से मिलती है, उस satisfaction को हम बोलते हैं utility. Simple words में utility का मतलब होता है satisfaction that you get from the commodity. So total utility का मतलब है total satisfaction that you get when you consume all units of the commodity, right? So जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं total utility का, देखिए इसका ये दिया हुआ है, total utility is equal to, this is U1 plus what is U1 U2, ये है utility from the first, second, third and nth unit, right? It is called as utility. हाँ मैं इधर लिख देती हूँ बेटा आप लोगों के लिए, U1 U2 U3 till UN. इसका मीनिंग है यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड nth यूनिट. जैसे अगर आपको फर्स्ट आइसक्रीम, अगर आपने फर्स्ट जो यूनिट है, फर्स्ट आइसक्रीम जो है वो आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है, आपने आइसक्रीम कंज्यूम की है, तो पहली आपने आइसक्रीम खाई, वो उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 20 यूटिल्स. देखो मैंने अभी बताया कि यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स में. सेकेंड आइसक्रीम आपने खाई तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 16 यूटिल्स. देन आपने थर्ड आइसक्रीम खाई, थर्ड आइसक्रीम से आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 10 यूटिल्स. तो अब मैं बोलूंगी मेरे को टोटल सेटिस्फेक्शन या टोटल यूटिलिटी कितनी मिली, हम ऐसे बोलेंगे 20 यूटिल्स प्लस 16 यूटिल्स प्लस 10 यूनिट्स, तो वो हमारा हो जाता है 46 यूटिल्स, राइट? तो टोटल यूटिलिटी का मतलब है
total satisfaction that you get from the commodity. आप जितनी भी कमोडिटी आपने पहली आइसक्रीम खाई उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरी खाई उससे कितनी मिली, तो जब हम सम टोटल करेंगे सारी यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन का, तो वी विल गेट टोटल यूटिलिटी. नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? सी मार्जिनल, ये सारे नए कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपको थोड़ा समझने में यू विल गेट एकस्टम टू, आप इसको करेंगे तो इट इज नॉट डिफिकल्ट. मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल. तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिलती है जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं. ठीक है, जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं सॉरी, जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे कितनी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. राइट, इसका मैं एग्जांपल अभी आपके साथ एक बार शेयर कर देती हूँ तो आपको चीजें ज्यादा ये क्लियर होगी. राइट, सो नाउ अगर हम कोई एग्जांपल अभी ले लेते हैं, सपोज आपने ये डेटा मैं आपसे अभी शेयर कर लेती हूँ. जैसे आपने एक आइसक्रीम खाई, राइट, उसको कंज्यूम करके आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 20 यूटिल्स. आपने एक एक्स्ट्रा और खाई, 2 आइसक्रीम्स खा ली, तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली 2 आइसक्रीम कंज्यूम करके? 36. नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? आपने कितनी एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाई? एक. उससे कितनी एक्स्ट्रा एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली? दैट इज 16. सो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हुई? 16 यूटिल्स. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई है? 36 यूटिल्स माइनस 20 यूटिल्स. दिस इज इक्वल टू 16 यूटिल्स. तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कितनी एक्स्ट्रा आपको सेटिस्फेक्शन, एडिशनल कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी. एक एक्स्ट्रा आप आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो तो उस एक्स्ट्रा वन आइसक्रीम कंज्यूम करने की वजह से कितनी एडिशनल आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी. राइट, नाउ सी देखिए एक बार अब ये जो नीचे फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी इज, एक तो ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये है चेंज इन टोटल यूनिट यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर. अब ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? सपोज आप ये एक आइसक्रीम आपने कंज्यूम की तो आपको 20 यूटिल्स 20 सेटिस्फेक्शन मिल रही है. अब आपने 5 आइसक्रीम कंज्यूम की तो आपको कितनी मिल रही है 5 कंज्यूम करने की वजह से? 50 यूटिल्स. अब देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा तो नहीं है, जब एक एक्स्ट्रा आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, राइट, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, दिस वन, ये वाला. लेकिन जब एक से ज्यादा आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो देन यू विल मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ये वाला, दिस वन. और इसमें आप कैसे करोगे? जैसे चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ये टोटल यूटिलिटी है, चेंज कितना है बेटा? 30. 50 माइनस 20 कितना हो गया? 30. अपॉन चेंज इन दिस नंबर यूनिट्स, तो कितने यहाँ पे हैं? 5 माइनस 4, सो दिस इज 4, तो कितना हो जाएगा? 7 पॉइंट समथिंग. तो आपका ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब एक से ज्यादा आप एक्स्ट्रा कमोडिटी यूज कर रहे हो. जब एक ही एक्स्ट्रा एडिशनल कर रहे हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अब एक से ज्यादा है आपका कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो उस केस में आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे. तो जस्ट लेट मी गिव दी recap of these concepts. यूटिलिटी का मतलब है satisfaction that you get from the commodity. टोटल यूटिलिटी का मतलब है आप जितनी भी सारी कमोडिटीज, टोटल सेटिस्फेक्शन दैट यू गेट फ्रॉम ऑल दी पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आप एक आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है? 20 यूटिल्स. ठीक है, आप
सेकेंड अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको मिल रहे हैं 16 यूनिट्स यूटिल्स, एक एक्स्ट्रा आपने और की तो आपको 16 यूटिल्स मिल रहे हैं, राइट। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हम प्लस कर लेंगे, टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट। और मार्जिनल क्या है, आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो, उस एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने की वजह से जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलती है एडिशनल, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मेरे ख्याल से अब आपको ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा कि ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब हम एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं। जब एक से ज़्यादा करते हैं तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला दिस वन, राइट। नाउ the concept will be more clear with the help of this data that is given to you। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा दिया हुआ है आइसक्रीम आपने कंज्यूम की एक, तो आपको 20 यूटिल्स जो है मार्जिनल यूटिलिटी का दिया हुआ है कि आपको एक यूनिट कंज्यूम करने से 20 सेटिस्फैक्शन मिल रही है। आपने एक एक्स्ट्रा कंज्यूम किया तो एक्स्ट्रा से आपको कितना मिला, 16 यूनिट्स मिले। तो टोटल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं बेटा, आप फर्स्ट वाला ऐसे ही लिखोगे 20, देन यू विल कीप ऑन एडिंग। टोटल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं, हमें हर यूनिट से जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, फर्स्ट आइसक्रीम से 20 यूटिल्स मिले, सेकेंड आइसक्रीम हमने कंज्यूम की तो हमें 16 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिली, थर्ड कंज्यूम करेंगे तो 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, फोर्थ आइसक्रीम कंज्यूम करने से मिल रहे हैं। सो टोटल सेटिस्फेक्शन निकालना होगा तो वी विल कीप ऑन एडिंग दी मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये वाला कैसे आएगा, 20 प्लस 60 तो हो गया 36। अब नेक्स्ट वाला कैसे आएगा, 36, अब इसमें हम ये 10 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 46। अब नेक्स्ट कैसे आएगा, 46 प्लस 4 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट कैसे आएगा, ये 50 लिखा यही वाला और 0 ऐड करेंगे, तो हम सिर्फ ऐड करे जा रहे हैं बेटा, 50 देन प्लस -6 है ना ये, इसलिए ये आपका आ गया 44। सो दिस वे वी विल डिराइव दी टोटल यूटिलिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 20 देन 20 प्लस 16, फिर 20 प्लस 16 प्लस 10, अगेन 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 4, ये इधर आ गया आपका +4। इधर कैसे करेंगे, 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 0 एंड हेयर 20 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 0 -6। तो आप कैसे भी कर लोगे, ठीक है। सो दैट इज टोटल यूटिलिटी। नाउ अब हमें ग्राफ बनाना है टोटल यूटिलिटी का एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। अच्छा अब बेटा एक चीज और, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। आपने ये डेटा देखा है, मैं इसको एक बारी क्लियर करके ना एक बारी साफ लिख देती हूँ ताकि समझाना मेरे लिए इजी रहेगा। फिर हम लोग कुछ एनालाइज करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, एंड दैट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपसे वो पूछा जाता है कि 3 मार्कर आ जाता है कि आपको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन द टीयू एंड द एमयू। तो इसमें जो फिगर्स थी मैं वो लिख देती हूँ, या दिस इज 20 36 then your 46 50 50 and 44, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, देखिए पहला रिलेशनशिप देखिए, एज लॉन्ग एज MU फॉल्स एंड रिमेन पॉजिटिव TU राइजेस। अब ऊपर चलते हैं, देखिए MU जब तक फॉल हो रहा है, यहाँ 20 था फिर 16 हो गया फिर 10 हो गया, देखो फिर 4 हो गया फिर 0 हो गया, तो जब तक MU आपका फॉल तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तब तक आपका TU जो है इट राइजेस। देखो TU आपका बढ़ता जा रहा है, 20 से 36 हो गया, 36 से 46 हो गया, 46 से 50 हो गया। तो जब तक आपका MU is falling but it is positive,
TU rises, right? Second देखते हैं, TU reaches its maximum when MU becomes 0. ओके, अब देखिए MU यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देती हूँ पेन का ताकि थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे MU जो है वो 0 हो गया, तो जब MU 0 होता है तो TU हमारा मैक्सिमम पे आ जाता है। पहले 50 था और अब भी 50 है, तो अब TU आपका इंक्रीज नहीं हो रहा। पहले देखो 20 से 36 हुआ, 36 से 46 हुआ, 46 से 50 हो रहा था, लेकिन अब इट रिमेन्स सेम 50 से 50 मैक्सिमम। ये मैक्सिमम जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका। वो ऐसा कब होता है? व्हेन MU इज 0, TU इज मैक्सिमम, राइट? और जब तक MU इज फॉलिंग बट it is positive, in that case TU is increasing या TU rises। इसको ऐसे लिख देते हैं, TU rises। तो ये स्टेजेस आती हैं बेटा, कई बारी रिलेशनशिप तो आता ही है पेपर में। TU rises एंड लास्ट वन यहाँ देखिए, when TU falls MU becomes negative। अब देखिए यहाँ पे TU जो है इट इज फॉलिंग, TU अब 50 था, TU हो गया 44, TU इज फॉलिंग। सो उस केस में MU आपका हो गया नेगेटिव। तो ये रिलेशनशिप है TU और MU के बीच में। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब MU फॉल हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, MU का कॉलम देखो बेटा पहले, दिस इज द कॉलम ऑफ MU, ये वाला। जब MU फॉल हो रहा है, गिर रहा है 20 से 16, 16 से 10, 10 से 4, लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो उस केस में TU इंक्रीज हो रहा है। ये देखो TU यहाँ पे 20 से 36 हुआ, 36 से 46 और फिर 50। दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप, ये फर्स्ट है। सेकेंड रिलेशनशिप क्या है? जब MU 0 है, अब MU 0 है तो TU जो है वो मैक्सिमम हो गया, TU मैक्सिमम है। इसके बाद जितना इंक्रीज होना था वो हो चुका, अब नहीं। देन जब MU आपका नेगेटिव होता है तो TU जो है वो इट स्टार्ट्स फॉलिंग, 50 से 44 आ गया। ठीक है, इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आई विल कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन। एंड अगर इस टॉपिक में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन फॉर बेटर क्लैरिटी, एंड इफ स्टिल एनी डाउट परसिस्ट प्लीज write your doubt in the comment section. Thank you for watching.